हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन algebraic expression in which the power of the variables are nothing but whole numbers. And then polynomial chapter में हमने डिस्कस किया था degree of the polynomial. So degree of the polynomial is nothing but the highest power of that polynomial. Okay, so degree of the polynomial जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिवाइड किया था। अगर डिग्री 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 2 होगा तो क्या बोलते हैं। तो अगर डिग्री 1 होगा तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? सो द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax square प्लस bx प्लस c. So this is nothing but a quadratic polynomial because the degree here is 2. Okay, so when f of x is equals to 0, that is nothing but ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is known as a quadratic equation. That is, we are equating with 0. So equation का मतलब क्या होता है? When we equate particular expression with certain value. So यहाँ पर हम equate करें with 0, so it becomes an equation. So this is nothing but a quadratic equation. So this is a standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers. So they are real numbers and a is not equals to 0. a will not be equals to 0 because a 0 हो गया तो x square टर्म वैनिश हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो it becomes a linear equation. Understood? So a cannot be equals to 0. a, b and c are real numbers. Understood? So this is the standard form of quadratic equation. Okay, now we are going to discuss, जैसे आपको questions आएंगे कि whether the given equations are quadratic equation or not. तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने यहाँ देखा उससे आपको कंपेयर करना है, मतलब उसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। अंडरस्टूड? एंड ये फॉर्मेट में होना चाहिए, देयरफॉर वी कैन से दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो विल टेक फ्यू एग्जांपल्स। अब जैसे कि अगर आपको आ गया x square minus 6x plus 4 equals to 0. Whether it is a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation because अगर हम compare करते ax square plus bx plus c equals to 0, this is a standard form. So यहाँ पर this is ax square term, यहाँ पर a का value 1 है, then this is bx, so b का value minus 6 and x plus 4 equals to 0. So this is nothing but a quadratic equation. Okay, now next example, 2x square minus 7x equals to 0. Whether it is a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation. यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, so it's a quadratic equation. बट यहाँ पर जैसे कि c टर्म जो है नहीं है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में लिखूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x square minus 7x plus 0 equals to 0. So ये फॉर्मेट में हमने लिख दिया, so it's a quadratic equation. Understood? Now next is x plus 3 by x equals to x square. Okay, whether it's a quadratic equation, so पहले हम इसको simplify करेंगे, simplify करने के बाद जो final हमको expression आएगा उससे हम compare करेंगे whether it's a quadratic equation or not. Okay, so यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ denominator में x है, first of all we have to remove the variable from the denominator. तो या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय x. तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ 3 इज इक्वल्स टू
एक्स क्यूब, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो नाउ यहाँ हम लेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा और इसके आगे हम और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सो इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ डिग्री क्या है, 3 है। इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ ax square plus bx plus c. Understood? So this is not a quadratic equation. अब काफ़ी बच्चे एक्स स्क्वायर टर्म देख के बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसको आप रिमूव करिए, उसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे भी है उसको आप एलिमिनेट करिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, एक इक्वेशन फॉर्म में लेके आइए एंड देन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब अगर एक एक टर्म देखेंगे तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में इसका पावर 2 है, तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आप बोलेंगे हाईएस्ट पावर यहाँ ये 2 है तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे या इसको मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन को। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो इट इज़ नथिंग बट एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? सो वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, बिकॉज यहाँ डिग्री 4 है। It's a biquadratic equation. Understood? So this is not a quadratic equation. Okay, now we'll see the next one. अब जैसे x square plus 2 root x minus 3 equals to 0. Okay, whether this is a quadratic equation? अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से लोग इसको क्वाड्रेटिक बोल के आ जाते हैं, एग्ज़ाम में आ गया तो लिख के आ जाएंगे। नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको 2 तो दिख रहा है, दैट इज़ 2, बट यहाँ पर दिस इज़ नॉट अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पॉलिनोमियल में हमने जैसे डिस्कस किया था कि पावर शुड बी अ होल नंबर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स है, तो रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू 1/2। रूट को अगर हम इंडेक्स फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो दैट इज़ 1/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा। सो यहाँ ये 2 है बट यहाँ पर 1/2 है, सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, तो आपको सिंप्लीफाई कर देखना है, जो इक्वेशन दिया है उसमें जो टर्म्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको दूसरे वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, देन यू कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन यू कैन से दैट वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, नाउ अब जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो अगेन पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, ऐसा लगेगा इट्स क्यूबिक इक्वेशन, नहीं, बिकॉज अभी एक्स क्यूब को मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब टर्म कैंसिल हो गया, दैट इज प्लस माइनस गेट कैंसिल, सो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको टर्म जो मिल रहा है वो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये जो हमको इक्वेशन दिया था इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो आपको जो भी इक्वेशन दिया है आप उसको क्या करना है, आप उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप डिसाइड करिए वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जस्ट यहाँ आपने देख लिया कि हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रहा है तो इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, नो। हाँ, बहुत से टाइम वो टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, अंडरस्टूड? सो वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, first simplify that equation and then compare it with the standard form,
अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ 2x² इक्वल्स टू 0, बस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर जो है दैट इज़ 2, एक ही टर्म है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर 2 है, बट अदर टर्म नहीं है। सो बट 2x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था? दैट a should not be equals to 0, b can be equals to 0, c can be equals to 0. So therefore this is a quadratic equation. अब जैसे कि बात करें हम 4x² plus 64, whether it's a quadratic equation? Yes, it's a quadratic equation. Understood? So इसको मैं 4x² plus 0x minus 64 यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, minus 64 equals to 0. Understood? So these are quadratic equation. So this is how we can identify whether the given equations are quadratic equation or not. तो आपको पहले उसको simplify करके देखना है. Okay, so in the next session we are going to discuss that how we can find out the roots of the quadratic equation. अब जैसे quadratic equation के roots या zeros. So what do you mean by roots or zeros? Are nothing but the values जो हम यहाँ पर equation में put करेंगे x का वैल्यू, so that this equation will be satisfied, that is LHS equals to RHS. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट इक्वेशन, जो भी इक्वेशंस होंगे. ओके, सो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? देयर विल बी 2 रूट्स और 2 जीरोज होंगे. अंडरस्टूड? ओके, सो वो कैसे फाइंड आउट करना है? देयर आर डिफरेंट मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड. So there are different methods जो हम coming session में discuss करेंगे. So till then you practice the questions which are based on to identify whether the given equations are quadratic equations or not. अगर आपको ये सेशन में कुछ भी डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला identify to whether it's a quadratic equation or not, और आपको उसमें डाउट आ रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट वहाँ क्लियर करने के लिए. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.